Hello friends, welcome back Chai to. pee lo. Wow, well done, Smriti, not bad. I am super impressed, okay? Welcome back to Double Trouble. It's me, Lil J, and with me I have my best friend, Smriti Raja. Mandana. Today you gave Woo! a good introduction finally. I was like, on all the shows, I'm taking your case a lot and not being so Thanks. much. I'm privileged. No, it's just that your fans are very angry with me, so I thought today I'll give you somehow. Thank you, my fans. That's why I love them more than you. It's okay, fans is what makes us. Oh Anyway, wow. so too much mustache. I think I'm in a good mood. Yeah. So, guys, I think we've spoken about on the field partnerships, off the field partnerships. So, Smriti, I think today we should talk about which you think is your favorite tour till now. Which is your favorite tour? You always My ask me questions. Let me ask you. for me, I think it would be New Zealand. Go. That was just on and off the Yeah, field, yeah. like I both. think New Zealand has to be even for me. I mean, I have never seen Smriti so active. I should tell Smriti, Chalna, we'll go for a walk. She's like, okay, Jamik, let's go. I'm like, wow, what has happened to you? I have also not seen myself that active. मेरे तो खुद को मैं 23 years से देख रही हूँ ना. I have also not seen myself that active. Actually, that tour, I started liking you more as a sister. Okay. Because I am someone who loves going out. I hate sitting in the room or just being in the room and I like Smriti, I'm bored or something. But that too, Smriti was like super active. So many times she was like, "Chal Jami, let's go. We'll do this or we'll do that, something or the other. We should play foot volley and all that." So it was super fun. I think we went in the morning to climb a mountain, which is I don't think मैं कभी करूँगी वो कभी. And that to 6 o'clock in the morning. Yeah, I mean, the previous day मुझे फुल इसने पटाया कि चलो अभी स्मृति को पटाना है कि कल 6 बजे उठना है. So I was like, नहीं मैं नहीं आ रही, तुम्हारा चले जाओ. She's like, no na Smriti, let's go na and we'll have Smriti fun. hates walking, just for the record. She hates walking. Yeah. So it was an off day, I think, and then she finally was like, okay. And then I was like, ठीक है चलो यार, इतना बोल रही बच्ची छोटी सी तो हाँ बोल देते. So I was like, चलो हाँ बोल लिया. And next day morning I'm up, okay, and this girl is like sleeping. And I'm like, Jami, get up, Jami. And she's like, nahi Smriti, I'm very sleepy now, Smriti. Like she has this tone in the morning. I was like, Jami, we've promised a person. I think she was waiting downstairs. Yeah. She had to come to pick us. Like she's promised, we've promised, so please get up. Then she was like, okay, I'll get up. So actually, I am the more active one in this story. No, see, after that you went in the sleepy mode. After that, I went in that energetic mode. No. I was the first one to climb. You remember? And you were like, Smriti ko kya ho gaya aaj? Oh yeah, you yeah. And Mona was there. Mona, you and I think Katie Perkins. You three were behind, and I was the first one to climb because you know why? slow चल के मजा नहीं आता. Not slow. We were clicking pictures and you didn't want to be a part of those pictures. So like जल्दी खत्म करेंगे, जाएंगे और रूम पे सो जाएंगे. यार. True. अरे क्या है कितना फोटोज? क्या करना है फोटोज का? Don't live in the moment. We are making memories in the moment. But anyway, I आजकल think के for me also, बच्चे. you're talking like you're one buddhi ma, just saying. But anyway, I think this is one of, our favorite tours still now, definitely. So yeah, from the time I think we had chais also at 3 o'clock, 2 o'clock because we were playing day night matches, and so 3 o'clock in the morning we were having tea party or something like that. Not party, like tea. We were having tea and in our room. It was at 10. We used to be awake till 3 because we used to have chai at 11 o'clock or 10 o'clock. So we used to be awake till 2 o'clock and we used to start talking. And for the first time, I saw Kabhi Khushi Kabhi Gum. But who are we? Okay, coming back to the show. It's time that we invite our guests for today. So, ladies and gentlemen, put your hands together for Shrijesh and Sardar Singh. Woo! Welcome on the show. I mean, Sardar Paji and Shrijesh Da. I am a hockey player actually. I played hockey for the state. So I played for Mumbai and Maharashtra. So,
I kind of know about hockey, and you know, it's like you guys have set the tone for hockey in India. So I mean, it's so nice talking to you all. Thank you, Ji. Thank you. I feel odd one out. We have 3 hockey players और 1 cricket player यार. नहीं उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम दोनों का काम तो एक ही है, सिर्फ बॉल को मारो, बॉल को मारना है. Exactly. But yeah, actually we are so excited to have you guys, you know, like it will be the first time we'll be interacting, you know, upfront, and बहुत मजा आएगा. So I think I'll start with the first question. I think अभी सब यही क्वेश्चन पूछते हैं अभी व्हाट्सएप पे या जो भी रिलेटिव्स फोन करते कि लॉकडाउन में अभी कर क्या रहे हो. तो भैया आप आई स्टार्ट विद श्रीजेश भैया. आप लॉकडाउन आई हर्ड कि आप यू स्टक इन बैंगलोर विद योर टीम. Yeah. Actually हमारा कैंप था जब लास्ट मंथ फर्स्ट वी स्टार्टेड आवर ट्रेनिंग कैंप, प्रिपरेशन कैंप फॉर ओलंपिक्स. So our all target were looking towards Olympics, and suddenly what happened, everything turned into the different scenario. So Olympics postponed for 1 year, lockdown, and we stuck in this place. Thank God, at least this place is so huge. It's almost 90 acres property. Wow. Where we are, I mean, I know almost 150 athletes are here with, I mean, the men's and women's team, and we are training together. But अभी तो फिलहाल कुछ है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइस टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइस की वजह से, so we train as a small group. So 2 या 3 लोग साथ में जाते हैं. We just do our normal fitness routine workouts or gym etc. At least keep ourselves fit for another 1.5 years, क्योंकि आपको पता है जब एक टारगेट मूव होने के बाद it's quite hard to focus, right? क्योंकि Olympics it's a big dream for us. So yeah, for it's all a of kind us. it's a kind of open zoo for us. हम लोग लॉकडाउन है but we are free to walk around. I think Smriti, we envy them right now क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा है. Yeah. बैटिंग ऐसे लग रही, भूल गई हूँ मैं बैटिंग क्या होती है. But actually I think this is one of the best thing, क्योंकि अभी आप लोग जब घर में बैठने के बाद जब on the field जाते हो ना, आपके पास वो desperation रहेगा कि I want to do that, and you will be fresh, your mind will be fresh, and once bat मिलेगा जो हम लोग पैड पहनते हैं, then you can just smash it 100%. सरदार भी आप अभी घर पे क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कंट्री की तरफ से. और बिल्कुल अभी 2018 लास्ट में मैंने रिटायरमेंट ली थी, तो पिछले 1-2 साल से तो मैं कहूँगा कि थोड़ी ट्रैवलिंग और फैमिली के साथ, क्योंकि पिछले 15-20 साल से आई थिंक 20 इयर्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि 10-15 साल स्ट्रगल में थे एकेडमीज में, उसके बाद कैंप्स में आ गए, राइट. तो फैमिली ने जो भी आई थिंक हार्डली श्री हमें कुछ ही टाइम मिलता, आई थिंक फैमिली को 1 वीक हर एक टाइम हम लोग को ऐसा कि 365 डेज में ऑलमोस्ट 300 डेज हम लोग टूर्नामेंट या कैंप में रहता है. वो भी दिन आपको मिलते हैं, उसमें आपको रिकवरी करनी है, फिर दोबारा नेक्स्ट कैंप में जाके परफॉर्म करना. और हॉकी आपको पता बहुत ही फास्ट गेम है, अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो आपको इंजरीज आएगी, तो उसके बाद फिर आपको पता क्या होता है. तो अभी यही था कि कुछ टाइम मिला फैमिली के साथ. आई थिंक लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मम्मी डैडी के साथ और गांव में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. 14 इयर्स आप दोनों साथ में खेले, कभी ऐसा हुआ कि बस अभी शक्ल नहीं देखनी है? क्योंकि मेरा और जेमी का बहुत होता है, लाइक हम लोग 8 महीने कंटिन्यू खेलते हैं, 8 मंथ के बाद वी आर लाइक जेमी यार शक्ल मत दिखा यार, निकल तो इधर से निकल जा प्लीज. श्री और मैंने, मेरे को याद है हमने इकट्ठे अपना करियर स्टार्ट किया था जब हम आई थिंक जूनियर टीम में आए थे. चाहे टीम इवेंट्स हैं उसमें मोस्टली टैलेंट, कोई भी एथलीट है टैलेंट की कमी नहीं है, बट ये है कि ऑफ द फील्ड आपको कैसे रहना है. अगर जितनी आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होगी आप उतना ही अच्छा टीम गेम में जो हमारा एक्सपीरियंस है आप अच्छा परफॉर्म करोगे. एक्चुअली आप लोग लकी हो ना, नहीं आप लोग लकी हो, आप लोगों को ऐसे जेमी जैसे कैरेक्टर नहीं मिला ना. अगर जेमी मिल जाती ना पक्का आप लोग ऐसे ना यू डोंट अंडरस्टिमेट, क्योंकि हमारे टीम में ऐसे बदमाश लोग हैं, इसमें से ज्यादा you can't even imagine. कॉम्प्लीमेंट भी और मतलब दोनों चाहिए. थैंक यू श्रिया, थैंक यू सो मच. एक्चुअली एक चीज सही है, क्योंकि आपको लगता है ना जैसे 2-3 महीने साथ में रहने के बाद आपको लगता है यार हम लोग को एक ब्रेक चाहिए. देन सडनली व्हाट हैपन, आप घर जाके 1 हफ्ते के बाद ना देन यू स्टार्टेड मिसिंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि साथ में खाना मजाक करना, यू नो, ये सब चीज एक तरीके से आदत बन गया लाइफ का रूटीन. सो डेफिनेटली यार इट्स अ क्या बताओ, इसको मिस करना नहीं चाहता हम लोग. नहीं मतलब वैसा क्वेश्चन वैसा नहीं था, क्योंकि जेमी का प्रॉब्लम ये है कि वो 10 मिनट भी शांति से रह नहीं सकती. अगर वो 10 मिनट भी अगर शांति से रही तो
पिल्लो से या तो वॉल से बात करना शुरू कर देगी। तो इसके लिए वो इतना कंटिन्यूसली बात करती है। तो दैट वो क्वेश्चन था कि आप में ऐसे कोई टीममेट में है जैसे जेमी जैसे कैरेक्टर? मनप्रीत वन ऑफ था ऐसे, आई मीन आजकल थोड़ा कैप्टन है। मनदीप देयर आर लॉट ऑफ देम क्योंकि जिसको कुछ ना कुछ करने का आदत है। पर ऐसे कैरेक्टर्स रहना चाहिए ना, मतलब फिर ही मजा आता है। मेरे सामने भी लड़का बैठा है, मेरे सामने भी मैं तो थोड़ा भी यार आई मीन मच बेटर बट या क्योंकि ये लोग तो जेमी अगेन अन्ना नॉट फेयर अन्ना। नहीं एक्चुअली हम लोग ग्राफ का नाप लेने के टाइम एक को तो टॉप पर रखना चाहिए ना, सो यू आर इन द टॉप नाउ जेमी। Anna, I was reading your story and it's quite amazing, you know, like your story, like you come from a farmer's background and then you went to a hostel at a very young age. Yes. And then you had so many sports to choose from: volleyball, yes. sprinting, high jump. But can you explain like how did hockey come to you? अरे as you said, family तो फार्मर का है, तो घर में मम्मी पापा ब्रदर एल्डर ब्रदर, तो हम लोग छोटा परिवार था। तो जब एक मौका मिला स्पोर्ट्स हॉस्टल ज्वाइन करने के लिए, तब तक मैं शॉटपुट मारता था एथलेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल ज्वाइन किया। हॉस्टल में शॉटपुट में तो कभी कुछ बनना नहीं था क्योंकि मेरे दोस्त लोग मेरे से अच्छा टैलेंटेड वाले प्लेयर्स थे। फिर मैं वॉलीबॉल ट्राई किया जब तो मैं छोटा था, आई मीन 4.5 फीट मैक्सिमम। तो उधर भी पता चल गया कि कुछ आई मीन कैरियर बनना नहीं है। देन डेफिनेटली उसके बाद फुटबॉल ट्राई किया। जब फुटबॉल ग्राउंड में पैर रखा तो आपको पता है केरला इट्स नॉन फॉर फुटबॉल, तो मेरे ही साथ वाला 20 या 25 लड़का लोग फुटबॉल खेल रहे, तो मुझे लगा कि मैं कहीं भी कुछ करने पाऊंगा, आई मीन अचीव करने पाऊंगा। देन आई चूज हॉकी, जहाँ पे मैंने हॉकी ग्राउंड में देखा कि बहुत ज्यादा लड़का लोग बेसिक सीख रहे हैं, आई मीन लड़का लड़की लोग सब साथ में बेसिक सीख रहे हैं। देन आई थॉट ओके दिस इज द स्पोर्ट्स व्हिच आई वांट टू ट्राई, और मैं वहां जाके हॉकी ट्राई किया। तो इट वाज फन बट डिफिकल्ट था, इट्स नॉट इजी, जितना इजी दिखता है उतना इजी नहीं है। तो हॉकी बेसिक सीखने के टाइम हॉकी ग्राउंड की कॉर्नर पे गोलकीपर्स खड़े होकर सिर्फ बॉल किक कर रहे हैं। एंड देख एक हम लोग का सबको माइंड में होता है ना कम भागना है, तो मुझे भागना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, सो आई हेट रनिंग। So then I choose, okay, this is my career. I want to become a goalkeeper. So I think इसके लिए we can relate a lot. मतलब especially me, I'm also like this only कि यार भागना नहीं है. So first I should do medium pace bowling. तो मुझे कोच मीडियम पेस बॉलिंग कराते थे। एंड फिर मैं एक दिन पापा के पास आई और बोली पापा मुझे बॉलिंग नहीं करनी। पापा बोले क्यों बेटा? मैंने बोला नहीं कौन इतना भाग के आएगा और एक बॉल डालेगा ना, मैं मेरा बैटिंग करूंगी एक जगह से, ज्यादा भागना नहीं है, मतलब अपने ऊपर है भागना है कि नहीं। स्मृति का बैटिंग में भी गेम सेम है, मतलब वो ज्यादा सिंगल्स डबल नहीं भागते हैं, बाउंड्रीज और सिक्सेस पे रिलाई करते हैं। वुमन क्रिस गेल राइट, जिसको रनिंग पसंद है। नो नॉट वैसे लोग। Thank you for mentioning not look wise. नहीं Chris Gayle भी वही करता है। He doesn't like to take one singles or doubles. He always want to six or chauka bas khatam. That's the best way, good investment actually. Not that bad also, Jimmy. You're not that bad. I mean, you do run, but you prefer hitting boundaries or sixes, right? Yeah. Any day. Go for the shot. कौन उतनी मेहनत करेगा यार? एक पे अगर 4 मिलता है तो कौन 1-2 रन भागेगा ना? Exactly. Power का भी इस्तेमाल करो, उसके बाद रनिंग भी करो ना। Yes. It's fun. Sardar Paji, I have seen your videos that you playing hockey. I mean, your dribbling is amazing. Like, I've seen every team, literally every time, like 3 player तो आपको मार्क करते ही है, मतलब 3 player रहते हैं आपके अराउंड, और फिर भी उधर से भी means to dodge them and go through them and make those long passes और game बनाना. Means how did you develop your position like सेंटर हाफ, वो डेवलप कैसे किया? So अभी तक लास्ट तक मैं अपनी प्रेज नहीं कर रहा, बट जस्ट अभी मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। टीम के साथ जब आप ट्रेनिंग करते हो वो अलग चीज रहती है, बट आपको पता है इतना खेलने के बाद कि आपके अंदर कौन सी आप किन चीजों के ऊपर वर्क करना चाहते हो। तो कोशिश करता हूँ कि हाफ एन आवर या जितनी भी ट्रेनिंग के बाद बॉडी में एनर्जी है तो अपना अलग जो स्किल्स है उसके ऊपर मैं इम्प्रूवमेंट करूँ। अगर मेरी स्पीड कम है, अगर स्ट्रेंथ कम है, हॉकी बॉल के साथ स्टॉपिंग है, एयर बॉल आ रही है आपको कैसे, वो सारी चीजों के ऊपर मैंने अलग से टाइम स्पेंड किया। बट ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि जो आप जिन गुरु को भी मानते हो, मेरे ख्याल से वही सारी चीजें क्रिएट करता है। जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ
श्री को पता बैक हैंड शॉट मेरा बेस्ट था, उसके ऊपर काफी मैंने याद मत दिला भाई। अरे यार ये ऐसे मारता है ना रिवर्स लेग, मुझे इतना बड़ा बड़ा पैड भी पहनता फिर भी दर्द होता है। आई हेट हिम, सीरियसली आई हेट हिम फॉर दैट। बट मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें मैडम जैसे आपने पूछा, आई थिंक वही है सारा कुछ क्रिएट करने वाला। जब तक आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फोकस हैं और उसको आप याद कर रहे हैं, वो सारी मूवमेंट्स है ना, वो सारी क्रिएट करने वाला। मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ, और उसके बाद आपका जो हार्ड वर्क है, आई थिंक हार्ड वर्क भी वही करवाते हैं। तो जेमी, एक्चुअली यू कैन टेक हिम एज योर रोल मॉडल। डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, शैतानी थोड़ा कम है बट फिर भी I think as two opposite pairs है ना, like सरदार भैया और श्रीजेश भैया एंड जेमी और मैं exactly same। मुझे ज्यादा मतलब भागना पसंद नहीं, जेमी like loves running, सेम इधर श्रीजेश भैया को ज्यादा रनिंग पसंद नहीं और सरदार भैया को ज्यादा पसंद है। आपको एक चीज बताते हैं, साल में स्टार्ट किया था जब हमारे भोपाल वाला, तो वीक में हमारा वो एक सेशन वो रहता था कि 400 मीटर आपने एक राउंड लगाना, फिर हाफ 1 मिनट ब्रेक, फिर अगेन 2 3 4, और नेक्स्ट वीक जब आपकी ये ट्रेनिंग आएगी फिर आपको एक चक्कर बढ़ाते जाना। एंड वी कंप्लीट आई थिंक 20 राउंड कंटिन्यू। एक दिन ऐसा आ गया था एशियन गेम जाने से पहले, और 20 चक्कर हमें लगाने हैं। तो वो सारी सिचुएशन टाइमिंग के साथ आपको पता होगा मेरा हालत क्या होगा उस टाइम पे, और मेरे मन पे क्या क्या भाषा चलता होगा कोचेस के ऊपर। आई थिंक ये सब सुन के अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने क्रिकेट चूज किया। इतना भागना नहीं होता मेरे से। नो सीरियसली जब आप लोगों का बीप टेस्ट का बात सुनते हैं ना, हम लोग हंसते हैं यहाँ पे बैठ के, जब मीडिया इस तरह फ्रेम कर देता है, यार ये बीप टेस्ट टॉप कर दिया 19.5। हमारा यहाँ पे हॉकी टीम के साथ लड़के लोग बीप टेस्ट खत्म कर लेते हैं। मतलब देयर इज नो मोर बीप। क्या लेवल, लास्ट लेवल है क्या? हमने कभी देखा नहीं, हमने देखा नहीं। 23.8 या 23.8 is the last stage। तो वहाँ पे I mean actually this is not a session, okay? ये खत्म होने के बाद हमारा नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन भी होता है। Right, that's just warm up। तो हरियाणा का शोर है, आपने कितने बार है ना? हाँ, आप लोग कितना हो गए ये बताओ पहले प्लीज। हम लोग 16 तक पहुंच गए, बड़ी बात है भैया। नहीं 16 गेम भी आपकी अलग-अलग गेम्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हॉकी में तो आपको पता बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। और बट डेफिनेटली आई थिंक वी विल एक्चुअली हैव टू ट्राई दिस, जेमी। आई थिंक वी विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू। हमारा भी कैंप बैंगलोर में ही होता है, तो अगर आप लोग बैंगलोर में हो एंड वी ट्राई एंड हैव अ ट्रेनिंग सेशन, मतलब हम लोग बहुत खराब रहेंगे, हंसना मत प्लीज हम पे, बट वी विल एटलीस्ट ट्राई, यू नो, कि एटलीस्ट हम इंप्रूव होए। It's a tough situation for you as well, right? एक long stretch होता है ना आप लोगों का ट्रेनिंग सेशन, और like us, हमारा तो 2 घंटे में खत्म हो जाता है ट्रेनिंग, और 2.5 hours maximum one like session। I think with cricket वो skills wise I think fielding, bowling, batting वो उस तीनों में भी हमको like हमको बैटिंग में भी 4-4 घंटे देने पड़ते हैं अगर हम पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उधर थोड़ा सा टाइम मतलब ये हो जाता है। तो इसके लिए फिटनेस में उतना आप लोग जितना कॉन्सेंट्रेट फिटनेस पे करते हो उतना शायद हमसे होता नहीं है, बट एक्चुअली हम लोग अगर किए तो वी विल बी, यू शुड ट्राई। क्योंकि आजकल क्या हो गया हमारा ट्रेनिंग में भी हम लोग को जीपीएस यूज करते हैं हम लोग, ओके? तो जीपीएस के हिसाब से हम लोग को टारगेट देता है कि 1 ट्रेनिंग सेशन में कितना किलोमीटर्स भागना हो। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 to 7 किलोमीटर्स यू नीड टू कवर इन अ सेशन। आप उतना कर नहीं पाएगा तो you have to run after the training session to complete that target। Okay। So आजकल तो आपको चीटिंग नहीं कर सकता ना, पहले हो सकता तो कोच कुछ बोल दिया, थोड़ा कट मार दिया आप कर सकता था, बट अभी कट का कुछ मतलब नहीं, तो कहीं भी भागो भाई, इतना भागना ही है। मतलब मेरा मुश्किल है, मेरा तो काम चीटिंग में है। Whenever I see goalkeeping in hockey, मुझे वो बहुत सिमिलर लगती है विकेट कीपिंग जैसे क्रिकेट में जो विकेट कीपर होते हैं, और जो हम लोग जितना देखते हैं विकेट कीपर्स को, इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। यानी आप लोग 100 बॉल्स कलेक्ट करो, बट वो एक जो कैच ड्रॉप किया, जैसे आपने अगर एक गोल मिस किया उसको ही लोग सुनाएंगे, अच्छी स्टंपिंग करे, कोई नहीं बोलेगा यू नो वेल डन। अगर उसने कोई छोड़ दिया तो सब तेरे वजह से मैच चली गई, यू नो, वो एक इट इज देयर। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? वो क्योंकि इट्स क्वाइट सिमिलर आई फील फॉर यू आल्सो। सीरियसली हमारे में तो आई मीन आप लोगों का टीम में तो आई मीन विकेट कीपर का एक मौका तो मिलता है बैटिंग करने का, जहाँ पे वो थोड़ा अपना प्रदर्शन तो कर सकता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप 25 बॉल सेव कर लो,
जो बंदा एक गोल मारा ना वो सुपरस्टार बन जाता है। एंड हम लोग सबसे पीछे ऐसे खड़े होकर देखते हैं यार ठीक है कोई बात नहीं। तो ये चीज बहुत जगह पे मैंने देखा कि अरे यार अब हम इतना मेहनत करते हो, मार खाते हो, आई मीन डेफिनेटली आप लोगों को विकेट कीपर को ज्यादा लगता नहीं होगा, बट हम लोग को लगता है बहुत ज्यादा। इसलिए तो मैंने बोला सरदारा का जो रिवर्स फ्लिक है, आई हेट दैट, क्योंकि वार्म अप के टाइम पे आके मारते हैं ना, आई हेट इट। सो जैसे आपने बोला जो टैंगलेस जॉब, मेरे जब टीम में खेलने के टाइम, जब शुरुआत करने के टाइम मेरे कोच ने एक ही चीज सिखाया था मुझे, एज ए गोलकीपर यू कैन बी द रीजन टू विन अ मैच और यू कैन बी द रीजन टू लूज अ मैच। सो तू एक वन मैन आर्मी है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दीज प्लेयर्स, डोंट ट्रस्ट देम। तो तब से मेरे दिमाग में था कि आप टीम जीतो हारो कुछ फर्क नहीं है, आप तो वही रह जाता है जो गोल मारता है वो स्टार है। बट या थैंक गॉड हॉकी में एक जगह है गोलकीपर को स्टार बनने के लिए, वो शूट आउट है, पेनल्टी। करेक्ट। वहां पे ये प्लेयर्स लोग, वो लोग बेचारे लोग को एक एक मौका मिलता है, गोल नहीं मारेगा तो वो लोग के ऊपर बैठेगा, हम लोग को 5-5 मौका है भाई, एक तो सेव कर लो, हम लोग बच गया। पर अभी जेमी वैसा मोमेंट नहीं आएगा ना चक दे इंडिया वाला, विद्या मेरी तरफ देखो विद्या। वो तो सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकता है। अब तो ऐसे ही होगा, विद्या जो करना है करो विद्या, 8 सेकंड तेरे हाथ में, 8 सेकंड वो 70 मिनट की जगह 8 सेकंड है तुम्हारे पास। बट इसमें एक एडवांटेज ये प्लेयर लोग के साथ है कि वो लोग कितना भी ट्राई अटेम्प्ट कर सकता है गोल स्कोर करने के लिए, सो इवन इफ दे गेट अ रिबाउंड दे कैन स्कोर इट। तो पहले में वैसा नहीं होता था, पहले तो सेव हो गया तो इट्स फिनिश्ड। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों तरीके से है। राइट। और सरदार भैया आई थिंक अभी सारे इतने सारे बायोपिक्स बन रहे हैं, सब ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स पीपल पे, अगर आपके ऊपर बायोपिक बना तो आप किसको चाहते हो कि आपको कौन मतलब एक्ट करे, और आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट लाइक ऑन स्क्रीन सरदार सिंह कौन लगेगा? मेरे ख्याल से अभी विक्की कौशल वो अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद रणवीर सिंह, और जो मैं आई थिंक थिएटर में मैंने लास्ट जो मूवीज देखी थी क्या उसका नाम है, बाग मिल्खा बाग, मिल्खा सिंह जी के ऊपर थी जो, बिल्कुल फरहान खान जी, उन्होंने अच्छा रोल किया था उस तरीके की। सो आई थिंक स्क्रीन में सरदार बनना इजी नहीं है, मस्त बॉडी बनाना पड़ता है, यू नीड टू लर्न हॉकी, इट्स नॉट इजी टू बिकम लाइक सरदार ऑन द स्क्रीन। लिसन बाय द वे, हम लोग भी क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउड है या तुम मेरे सब अलाउड है, सब अलाउड है इधर, ऐसे सो कुछ दैट्स रूल माय नहीं है। बिगेस्ट क्वेश्चन। हम लोग इतना साल खेला हूं बट वी नेवर प्लेड इन वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स फाइनल्स, सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू पीपल हाउ यू वर प्रिपेयर फॉर अ वर्ल्ड कप। आपको एक पर्सनल होता है ना, डेफिनेटली यू गाइस जब से खेलते हो तो आप लोग सोचते कि यार वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है, कप जीतना है, yeah, definitely you were imagine that, right? पोडियम में खड़े रहते हो, वो ट्रॉफी को हाथ में लगाते हुए, right? So how was your preparation the previous night? Well, I think for me, I think मैंने 2 खेले फाइनल्स, 2017 में भी जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, एंड अभी जो इस साल हमारा फाइनल्स हुआ, एंड लास्ट टाइम हम सेमीफाइनल्स में वर्ल्ड कप में बाहर निकल गए थे। तो 2017 का तो वाज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि आई थिंक एज अ क्रिकेटर आप चाहते हो कि हमेशा आप लॉर्ड्स में खेले। फर्स्ट टाइम द लॉर्ड्स इज सोल्ड आउट, सारे टिकट्स चले गए, एंड व्हेन वी एक्चुअली प्लेड द फाइनल, उसके पहले रात को आई वाज थिंकिंग कि क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, बट देन आई वाज लाइक चलो लेट्स नॉट थिंक एनीथिंग, क्रिकेट ही खेल रहे फाइनली, लेट्स नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉल। एंड दिस टाइम इट वाज मच मोर ऑफ अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, जैसे आपने बोला कि उस टाइम काफी डिफरेंट टीम था। इस टाइम आई थिंक जेमी नोज की हम लोग काफी यंग टीम थे, हमारा एवरेज एज 22 था, 22 या 23 इस वर्ल्ड कप का। So it was this time, तो it was like कि चलो it's like we are in a good flow, and हम लोग सब अच्छे माइंडसेट में थे। जब भी like जो रात को मैं और जेमी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या सोचे, क्या करना चाहिए, देन हम लोग दोनों ने यही बोला कि यार we played such good cricket अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में, तो let's just concentrate on that कि ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड कप फाइनल है। एंड आई थिंक हमारे जो कोच है रमन सर, उन्होंने सबसे अच्छी चीज की थी जो इस वर्ल्ड कप में था, कि उन्होंने कोई भी टीम मीटिंग या कोई भी चीज में वर्ल्ड कप नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला हम टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, हम क्रिकेट खेलने आए हैं। आई थिंक जेमी इफ यू रिमेम्बर दैट एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि उन्होंने एक टीम मीटिंग में भी नहीं बोला कि ओके हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं। तो दैट वे हमारा वो दिमाग में था ही नहीं कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इट वाज लाइक ओके वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट टूर्नामेंट, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप सोचा तो बहुत प्रेशर है। So I remember like me, this was my first World Cup final, and just before the tournament it was like a dream, like okay, because everybody was saying we're going to play it at MCG,
And first time ever, they were going to try for 90,000 people coming to watch our game. और women's cricket में ये कभी नहीं होता. Yeah, that's a huge thing. So I was like, I told this in my interviews, it will be my dream, to stand at the MCG and sing the national anthem with 90,000 people over there. So, and that day, when I stood on that ground, you couldn't explain it, like something very different, right? So, like women's cricket, like there were literally 86,000 plus people present before the first ball was bowled. So, like, I mean, that was crazy. And one more thing Raman sir had told us, just a practice session before the main match, he called us all and he told us, see, this opportunity, you might never get it in your life ever. Like playing in front of so many people at MCG, the finals. So he said, just don't think about the results, just enjoy every moment of it. Because this is never going to come back. और उन्होंने ये भी फनीली बोला कि अगर मुझे रिटायरमेंट से वापस बुला के बोलते कि इस दिन खेलना है तो मैं इजीली मेरा रिटायरमेंट छोड़ के वापस आ जाऊंगा खेलने के लिए ये मैच, अगर मुझे बोलेंगे कि एमसीजी पे खेलना है. So I think that was the kind of excitement, nervousness, or mixed feelings, but that is a crazy experience. Like seriously, you guys are really lucky. So seriously, this experience is going to help you for the next World Cup final. क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि हाँ यार क्या होता है, कैसे होता है, एंड क्या प्रेशर होता है, I mean even the previous night how you spend it, क्या करना चाहिए, क्या करने से टीम अच्छा कर सकता था, the exact same thing we share with our youngsters. क्योंकि जब हम लोग ओलंपिक्स खेलने के टाइम पे हम लोग को लगता है कि जैसे as you said Jen, कि youngsters को that's like a festival, right? 86,000 people staying, I mean, in the gallery, it's like something fascinating you. आपको एक एक्साइटमेंट आ जाता है. बट एक मैच्योर प्लेयर व्हाट दे थिंक, ओके, लाइक अरे यार नहीं बच्चे उधर मत देख, इधर देख, राइट? जैसे धोनी भाई ने जैसे बीच में पंत को शायद गाली दिया था कि अरे गैलरी को बाद में देख, पहले क्रिकेट खेल. सो द सेम वे. That was good, huh? But anyways, we all are really proud of you people. You made us really proud. Thank you so much. Yeah, I think that's it for today. I mean, बहुत सीखने मिला, और thank you once again for coming on the show. Thank you so much. Thank you very much, guys. और हम लोग आने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, राइट स्मृति? बैंगलोर, yes, बैंगलोर डेफिनेटली. प्लीज आप लोगों के लिए हम लोग वेट कर रहा हूँ. And definitely हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज करेंगे. बिल्कुल एकदम मतलब आप लोगों का अमेच्योर लेवल भी रहेगा ना, उससे भी हम लोगों के लिए हार्ड है, उसके भी लो. आप ये सारी चीजें आना मत किसी को, आराम से आना, चोरी 4-5 सेशन अटेंड करना, फिर आप देखिए जब टीम के साथ करोगे, यू गाइस, है ना, एक्स्ट्रा अलग से देखो. यस. फिर हम लोग इंटरव्यू में बोलेंगे, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट. यस, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माय फिटनेस. So guys, this, as you all know by now, is definitely our favorite section of the show because it involves you guys. So this is question and answers with Jemmy and Smriti. Smriti, old ladies first again. Yeah, thanks, Jemmy. So first question for me is from Arbina Sheikh. Have you gone through sledging or done sledging? I'm not much of a sledging person. Shant and calm person I am. But I think maybe once someone would have sledged me, but itna zyada dhyan nahi diya maine. But yeah, when I sledge only to maybe Jemmy whenever we are playing against, and even a practice match or some practice session we had, and Jemmy comes to bat, then I especially go at point where I don't feel. जहाँ पे fielding में ज़्यादा करती नहीं, but I'll go at point and make sure that I start talking shit and make sure I divert her because she wants to be this serious person when she bats, na. So I want to be like irritate her a bit. So Smriti, I don't know, she gets over energetic every time I come out to bat. Otherwise she'll be like just shant in one corner fielding. The moment Jemmy comes, come on, bowl her, do this, do that, helmet pe सीधा. Also, really nice. And I like to be very serious. So I try to maintain my, like, okay, I have to be serious, I have to be this, that. Smriti will come from your right at my face, I'll turn around, I'll look back, and I won't even look at her. So I think only I sledged to Jemmy. Yeah. So my question is from Somya Deep Das. Hi Jemmy, how was your feeling when you first saw your name behind the blue jersey of India? I think this is a very good question. So actually the first time I saw my name behind the India jersey was during India A. So we got very similar jerseys, like exactly the same jersey what the Indian team was using. Until then I never really got a jersey with my India name on it.
And I remember that when I saw that jersey, literally, I was shant. Smriti, you can imagine me shant. No, Yeah. I was fully have seen you, shant. Shant. So I went fully shant, and I literally got goosebumps, and I was like, I can't believe what's just happening. I took the clothes, I ran immediately to my room, and I just wore it, and I just looking at myself like that in the mirror. Like, it was like a dream come true. You were dreaming to be in that blue jersey for so long, and finally you were in it. So that feeling cannot be described. And then click photos and send it to your parents and brother. That's definitely. like because after same feeling, but yeah, I even did that, like same. I also did the same everything. And I all sent it to angles. mom, I dad, did and this. Bhaiya. I turned around and I did this. Same. Like all angles. Yeah. So next question is from Bolu Mala Manoj Kumar. Okay. I hit the first ball boundary. What is the mindset of the next ball? So you meant like if I hit the first ball to boundary, what will be my mindset for the next ball? So yeah, I think it's the same. Just watch the ball and play according to the ball rather than thinking ki what you've done in the past. It's the same how people say कि beat होने के बाद सोचने का नहीं ball के बारे में. It's the same for me also, that boundary मारने के बाद भी you should not think about it. Next ball also you should go with the same mindset according that to the merit. Yes, that's it. I think. अगर next ball भी 4 के लिए तो you have to hit, right? No, Smriti put it in very good language. What she would tell me is, Jemmy carry ball, देख मार. I have to explain it, right? Not like that. Yeah. No, but that's true. Like, according to the merit. So my question is from Shubhashish. We know that Smriti Di is the expression queen, and Jemmy is a super active girl. One thing that you both want to learn from each other apart from cricket. I've understood a new thing about myself. Expression queen, am I? I think you answered the question. I want to learn Smriti's expression. Then people will call me the national crush. Okay, no, sorry, that was bad. But I think, okay, many people don't know, Smriti didn't know that I was supposed to tell this story. So I remember first time in Guwahati, Smriti had become the captain of the team, and there were, I think, two people who were making their debut. I think Komaldi and Bharti Fulmali. And Smriti called them to the room. Like, it was very new for them, the atmosphere and everything was very new. And as a debutant, even, we are very nervous and all. Just to make them comfortable, Smriti said, she called them to the room, ordered chai, and, just had a conversation just to build up that rapport and just make them feel at home and not feel like an outsider, but just feel like a part of the Indian team family. So I think that is one of the best things I've learned from Smriti. And she always tells me, Jemmy, we should be leaders. Like, people can always approach us and very comfortable, and they can speak. So we should be such kind of seniors or leaders. So I think this is one of the best things that I've learned from Smriti. See, too emotional. I'm learning this from Jemmy. Nice. Overacting. So guys, that's it for today. I hope you guys loved and enjoyed the show as much as we are doing. And please do let us know how you feel. Keep loving and supporting us. This is Lil J and Smriti signing off.